آج کی جو دوسری کلاس ہے، کوئی بتا سکتا ہے کہ کیا سیکھ رہے ہیں اس میں ہم؟ ہاں جی، نیو ٹیسٹامنٹ سروے، نئے عہد نامے کا جائزہ، نئے عہد نامے کا جائزہ۔ تو اس سے پیشتر کہ ہم آگے بڑھیں، میں چاہتا ہوں کہ جو کچھ ہم نے گزشتہ سیکھا ہے، پہلے اچھا ہے کہ آپ ہیلپ کریں، مدد کریں، تاکہ اس کو انڈرسٹینڈ کیا جائے، سمجھا جائے۔ ایسا نہ ہو کہ ہم آگے چلتے جائیں اور پیچھے ہمیں باتیں بھول جائیں۔ سو ابھی تک ہم نے یہ جو یہودی مذہب اور اس کے جو مختلف گروہ ہیں ان کے بارے میں اور کچھ اور چیزیں جو سیکھی ہیں، صرف تاریخ سے ہٹ کر، یعنی جو تاریخی چیزیں سیکھی ہیں ان کو چھوڑ دیں آپ، اور اس کے بعد والا جو حصہ ہے جہاں سے ہم نے اس مذہب کے گروہ جو ہیں ان کا تذکرہ کیا، جن کا ذکر ہمیں نئے عہد نامے میں ملتا ہے، مختصراً آپ ان کا نام بتائیں گے اور اس کے ساتھ ایک یا دو باتیں ضرور ایڈ کریں گے۔ جی، نمبر 1۔ نہیں، یہ تو آگے چل کے ہم جب ان کی اقسام ہیں، یہ بڑی گال یاد ہے۔ ہمارے ایک بندے نے سچی مچی اپنے آپ کو زخمی کر لیا ہے۔ جس دن سے اس نے سنا نا زخمی فریسی، وہ سچی مچی زخمی ہو گیا۔ اس سامنے کہیں جالی تھی اور اس کو ہی اپنا جالی میں لگ گیا جا کے۔ کہتا میں نے چشمہ اتارا ہوا تھا تو مجھے پتا نہیں چلا۔ اوکے، ہاں جی، بتائیں ذرا، پہلے نام بتائیں ان سب کے آہستہ آہستہ، تاکہ مجھے پتا چلے کہ آپ کو فائدہ ہو رہا ہے کچھ۔ جی، بہن صبا، بہن طاہرہ، ہاں جی، ہارون صاحب۔ ہاں، مختلف گروہ سیکھے ہیں۔ ہاں، ہیرودی، ہیرودی، اوکے۔ ہیرودیوں کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟ ہاں، ویری گڈ، یہ گورنمنٹ کے ساتھ ملے ہوئے تھے۔ اور پہلے ان کے بارے میں کچھ اور بتا دیں۔ ہیرودیس کے اپنے لوگ تھے، ویری گڈ۔ اور ان کے بارے میں بس؟ ہاں جی، ہاں، جو درست خبریں ہیں ان کو کیا کرتے تھے؟ اور ہاں، ٹیکس کے بارے میں لوگوں کو کنونس کرتے تھے کہ یہ کام ٹھیک ہے۔ اوکے، آگے نمبر 2۔ یہ تو ہیرودی، بس ہیرودیسی کوئی نہیں ہے، ہیرودی گروپ ہے۔ کیا نام ہے اس کا؟ ہیرودی۔ اوکے، نمبر 2۔ اور کون ہے؟ ہاں جی، زیلوتیسی، ویری گڈ۔ ہاں جی، ان کے بارے میں بتائیں ذرا۔ کامپرس تھے، ویری گڈ، کامپرس تھے۔ اور محب وطن تھے، ویری گڈ۔ رومی حکومت کے خلاف تھے، ویری گڈ۔ اور آزادی کی جنگ لڑ رہے تھے، ویری گڈ، کی جنگ لڑ رہے تھے۔ ہاں، رومی اسے اچھا نہیں سمجھتے تھے، اور برابا بھی
इसी गिरोह का हिस्सा था। इसका नाम क्या है? नो, ये जो अभी बोला है बर अब्बा, बराबर नहीं कहना, बर अब्बा। बर का मतलब बेटा, अब्बा यानी बाप का बेटा, जो इसके नाम का मतलब है। ओके, और कुछ जानते हैं ज़ैलोतीसी गिरोह के बारे में? हाँ, वेरी गुड। शिमाउन, वेरी गुड। और शाबाश, ऑनलाइन भी जितने लोग हैं बता सकते हैं कमेंट्स में। वेरी गुड। और हाँ जी, हाँ, हुकूमत के साथ इनकी लड़ाई झगड़ा चपकलश चलती रहती थी। ओके, और शाबाश, वेरी गुड। चलें, इनफ है, आगे। हाँ जी, और गलीली, वेरी गुड, ये भी एक गिरोह था। गलीली, हाँ जी, इनके बारे में? हाँ, वेरी गुड, ये एक अलग से रियासत के ख्वाहा थे। और यहूदा गलीली, जिसका जिक्र किसने किया था? गमलीएल ने। ओके, यहूदा गलीली। ओके, खुदावंद यीशु मसीह पर भी इल्जाम लगाया जाता था कि उसका ताल्लुक भी गलीली गिरोह से है, जबकि खुदावंद यीशु मसीह ने साफ इसका इनकार किया। और इनके बारे में क्या जानते हैं? हाँ जी, हाँ, रूमी हुकूमत के ये ज़ैलोतीसी और सेम ही गिरोह था। हाँ, ये भी सेम ही तरीक़ाकार था, लेकिन ये कोई ज्यादा देर तक नहीं चल सके। मतलब यहूदा गलीली और उसके कुछ अरसे तक ये इसकी तहरीक चलती रही, लेकिन जैसे ज़ैलोतीसी गिरोह था उसकी तरह ये गलीली गिरोह इतना सक्सेसफुल या कामयाब नहीं था। ओके, हाँ जी, और वेरी गुड। और क्या है? सदुकी। ओके, सदुकी, हाँ जी, फरीसी और सदुकी जिद थे। ओके, वेरी गुड। ठीक है, आजाद ख्याल, शरीयत के पाबंद थे। वेरी गुड। हाँ, रवायात की भी। ओके, और तब सारे गिरोह इकट्ठे हो जाते थे। वेरी गुड। सदुकियों के बारे में और क्या जानते हैं आप? हाँ, ये लोग क़यामत पर, फरिश्तों पर, इन चीजों पर ईमान नहीं रखते थे। जी उठने पर ईमान नहीं रखते थे। आइंदा आने वाली चीजों पर ईमान, यानी ये कहते थे कि जब इंसान मर जाएगा तो उसके बाद सब कुछ खत्म हो जाएगा। ये सदुकियों का क्या है? अकीदा है। वेरी गुड, शाबाश। हाँ जी, और फरीसी बड़े पसंद ने तानू। और कुछ और भी सीखा था, सेनहेड्रिन के बारे में सीखा था। सेनहेड्रिन के बारे में आप बाइबल मुकद्दस में, न्यू टेस्टामेंट में उर्दू जुबान में क्या तर्जुमा हुआ इसका? सदरे नहीं, सदर अदालत।
جب بھی سے پڑھنا ہے کیا پڑھنا ہے؟ صدر عدالت مطلب بڑی عدالت. اوکے, عدالت عظما. اوکے, اچھا اور سنہڈرن کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟ ہاں 72 70 یا 71 70 یا 71. 71واں جو تھا وہ کون ہے؟ سردار کاہن جو اس کا لیڈر تھا. اوکے ہاں ویری گڈ. جب مرد خدا بزرگ موسیٰ سے کہا گیا کہ 70 لوگوں کو چن لے. اور سنہڈرن کے بارے میں کیا جانتے ہیں؟ سردار کاہن کو ہاں جی رومی جو گورنمنٹ تھی وہ کنٹرول کرتی تھی. اوکے, اور کوئی سنہڈرن کے بارے میں؟ یہی وہ عدالت ہے جس میں خداوند یسوع مسیح کا مقدمہ سب سے پہلے چلایا گیا. پھر رسولوں کے مقدمے بھی اسی عدالت میں چلائے گئے. ویری گڈ. اوکے, اور کچھ سیکھا؟ ہاں ان کے پاس بڑی سزائیں دینے کا اختیار نہیں تھا. مطلب سزائے موت نہیں دے سکتے تھے, چھوٹی سزائیں یہ دے دیتے تھے, لیکن بڑی سزائیں دینے کا اختیار ان کے پاس نہیں تھا. اوکے, اور نیکسٹ. ہاں جی ہسٹری نہیں آج کا رہے, بس ان کے نام. اوکے, عبادت خانوں کے بارے میں بھی سیکھا تھا. عبادت خانے کیا جانتے ہیں آپ؟ ہاں جی جہاں بھی 10 یہودی موجود ہوں وہاں وہ ایک عبادت خانہ بنا سکتے ہیں, اس کی اجازت ہے. عبادت خانے میں ہوتا کیا تھا؟ قربانیاں. ہاں جی قربانیاں نہیں ہوتی تھیں. قربانیاں کہاں پہ ہوتی تھیں؟ ہیکل میں. ویری گڈ. اور یہاں پہ کیا کیا جاتا تھا؟ شریعت پڑھی جاتی تھی, پڑھائی جاتی تھی, سکھائی جاتی تھی, تعلیم دی جاتی تھی, سوال و جواب کا سلسلہ ہوتا تھا. خداوند یسوع مسیح بھی عبادت خانوں میں جا کر تعلیم دیتے اور لوگوں کو سکھاتے تھے. اور نیکسٹ. کاہنوں کے بارے میں, فقیہوں کے بارے میں نہیں آپ نے بتایا. فقیہ ہاں جی فقیہ کے بارے میں ہم نے ایک ریفرنس بھی پڑھا تھا متی 23ویں باب میں سے. اوکے, انہیں اسکرائبس بھی کہا جاتا ہے جو شریعت کی کیا کیا کرتے تھے؟ کاپی کیا کرتے تھے, لکھتے تھے, اور شریعت کی تفسیر و تشریح بھی ان کی ڈیوٹی یا ذمہ داری تھی. اوکے آگے. ہاں جی فیورٹ فریسی. اوکے, ان کے بارے میں آپ کے پاس کافی انفارمیشن ہے. ویری گڈ. میرا خیال ہے سبھی ہو گئے. آگے بڑھیں گے. کچھ میں نے تاریخیں جو ہیں وہ پروجیکٹر نہیں لگایا, چلو یہ آپ کو نا ایسا کریں گے کہ الگ سے نا یہ بھجوا دیں گے ہسٹری جو نیو ٹیسٹامنٹ کے چند ایک ضروری واقعات ہیں ان کی, اور کچھ کتابوں کے تعلق سے. ایک بات آپ نے یاد رکھنی ہے کہ یہ جو تاریخیں آپ تک پہنچیں گی, یہ تاریخیں جو ہیں ان پر سارے اسکالرز متفق نہیں ہیں. اوکے, مطلب 10 5 4 3 2 1 سال کا کوئی نہ کوئی ڈفرنس رکھتے ہیں. مطلب اگر کوئی کہتا ہے کہ جی یہ کتاب 60 عیسوی میں لکھی گئی ہے تو دوسرا کہے گا نہیں 61 میں لکھی گئی ہے. تو آپ کو اپنے اندر گنجائش رکھنی ہے اس بات کی. اسکالرلی ہمیشہ گفتگو ایسے ہی ہوتی ہے کہ اگر کوئی ایک بات کے تعلق سے کہہ رہا ہے اور دوسرے کے پاس بھی ایویڈنس ہے تو وہ اپنے
جو اپنا پوائنٹ ہے دلائل کے ساتھ وہ پھر ثابت کرتا ہے کہ میرے پاس اس پوائنٹ کو ثابت کرنے کے لیے یہ دلائل. اسکالرز کبھی بھی دوسرے کو غلط نہیں کہتے ہیں. اگر خدا نہ خواستہ کوئی کلام کے بارے میں غلط تفسیر نہ کرے، اوکے وہ تو غلط ہے، لیکن ادروائز کوئی بھی پوائنٹ آف ویو، جیسے آگ ہی لے لیں، روح القدس کی آگ. اب کچھ سکولرز آپ کو تشریح کرتے ہوئے ملیں گے کہ یہ جو آگ ہے یہ جہنم کی آگ کی طرف اشارہ ہے. دوسرے سکولرز کہیں گے کہ نہیں، یہ دراصل روح القدس کی جو معموری ہے اس کی طرف اشارہ ہے. سو غلط تو کوئی نہیں ہے، دونوں ہی اپنے ثبوت دے دیں گے کہ بھائی جس چیز کو میں کہہ رہا ہوں میرے پاس یہ دلائل ہیں، اور دوسرا کہے گا کہ میرے پاس یہ دلائل ہیں، لیکن دونوں غلط نہیں ہے. سو اس لیے یاد رکھیں کہ اس طرح کی جو تشریحات ہیں جن میں اسکالرز اپنے اپنے پوائنٹ آف ویو کو شیئر کرتے ہیں ود لاجکس، اپنے دلائل کے ساتھ، ریزنز کے ساتھ، تو ہمیں گنجائش رکھنی چاہیے اس بات کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے، سمجھنے کے لیے. اوکے، اسی لیے میں کہتا ہوں کہ جو مسیحی کلیسیائیں ہیں ان میں تفرقات نہیں ہونے چاہیے، کیونکہ تھوڑا بہت فرق چند ایک کلیسیاؤں میں موجود ہے. سو اس کئی دفعہ میں لوگوں کو دیکھتا ہوں کہ وہ سارے کلام کو ایک سائٹ پہ رکھ دیتے ہیں، 99% مختلف نکات پہ وہ اتفاق کرتے بھی ہیں، ان کو سائٹ پہ کر دیتے ہیں، اور جس پہ کوئی لڑائی جھگڑا ہے اس پوائنٹ پہ بحث مباحثہ شروع کر دیتے ہیں، جس سے تفرقات بڑھتے ہیں. سو آپ برائے مہربانی کوشش کریں کہ جن سے تفرقات بڑھتے ہیں، نفرت پھیلتی ہے، وہ پوائنٹس نہ ڈسکس کریں، بلکہ آپ جن پوائنٹس کے ساتھ سب ایگریڈ ہیں اس کلام کو دوسروں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ روحیں جیتی جا سکیں. بات سمجھ رہے ہیں کہ کسی ایک پوائنٹ پہ، جیسے مثال کے طور پہ میں کہتا ہوں کہ ایک کلیسیا غیر زبانوں کو نہیں مانتی ہے، آپ کو کسی نے موقع دے دیا ہے وہاں کلام سنانے کا، تو بجائے اس کے کہ آپ باقی سارے کلام میں سے کوئی حصہ پیسج پڑھ کے سنا دیں، آپ اسی چرچ میں یا انہی لوگوں کے ساتھ جا کے غیر زبانوں پہ بحث شروع کر دیں، تو کیا نیکسٹ وہ آپ کو سنیں گے یا آپ کو موقع دیں گے؟ نہیں. تو اس لیے اچھا ہے، ضروری ہے کہ جن چیزوں پہ آپ اتفاق کرتے ہیں وہ کلام سنائیں. آہستہ آہستہ لوگ جب قائل ہو جاتے ہیں تو وہ آپ کی ساری باتوں کو سننے کے لیے پھر تیار ہو جاتے ہیں. اوکے، گاڈ بلیس یو. اوکے، اچھا، چند ایک چیزیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا خداوند یسوع مسیح کی پیدائش کے تعلق سے بیان کیا جاتا ہے. یہ 4 BC اور خداوند یسوع مسیح کی خدمت کا آغاز 26 BC یعنی AD. خداوند یسوع مسیح کی مصلوبیت اور جی اٹھنا 30 AD اور استفنس کی شہادت 32 AD. بہرحال میں سوچ رہا ہوں کہ یہ آپ کو نا نوٹس میں ہی بھجوا دیں گے، آج یا کل تک آپ کو یہ مل جائیں گے. اوکے، ہم آگے بڑھیں گے. اور اناجیل اربع کیا مطلب ہے اس کا؟ چاروں اناجیل. کیا مطلب ہے؟ چاروں اناجیل. کوئی بتائے کہ 4 ہی کیوں ہیں؟ 4 سے کم نہیں ہے، زیادہ نہیں ہے، کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ 4 ہی کیوں کینن کا حصہ بنی ہے؟ ہاں جی، کوئی بھی آپ میں سے. اوکے، ہاں جی، اور اوکے، ہم اس پہ ڈیٹیل بات کریں گے اور ضرور جانیں گے، سیکھیں گے. یہ بڑا عام سوال ہے جو عام طور پہ پوچھا جاتا ہے کہ بھئی اناجیل 4 ہی کیوں ہیں؟ 4 سے کم کیوں نہیں ہے اور 4 سے زیادہ کیوں نہیں ہے؟ پھر انجیل کا نام سنتے ہی کچھ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ شاید یہ کتاب جو ہے یہ خداوند یسوع مسیح پر اتری.
खुदावंद यीशु मसीह पर उतरी। कितने लोगों ने सुना है ये मुख्तलिफ लोगों को कहते हुए? बहुत दफा मेरा ख्याल है तमाम मसीहियों ने इस बात को सुना है कि खुदावंद यीशु मसीह पर इंजील उतरी। ओके, अच्छा, इस गलतफहमी की वजह शायद जो पुराने अहद के अंबियाए कराम और उनके साथ जो उनके सहायफ हैं वो वजह हो सकती है। जैसे मिसाल के तौर पे कहा जाता है जी कि मर्द खुदा बुजुर्ग मूसा पे शरीयत की किताब उतरी और बुजुर्ग दाऊद पर ज़बूर की किताब उतरी। इसी तरह खुदावंद यीशु मसीह पर इंजील उतरी। अच्छा, मैं ये बहुत क्लियर कर दूं और जितने भी हमारे स्टूडेंट्स हैं या जितने और भी दीगर लोग सुन रहे हैं, इन तीनों चीजों में भी सदाकत नहीं है, क्योंकि मर्द खुदा बुजुर्ग मूसा पर अब शरीयत में कितनी किताबें शामिल हैं? 5 किताबें। तो क्या 5 की 5 किताबें मुकद्दस मूसा पर उतरी? बताएं। नहीं। ज़बूर की किताब में कितने ज़बूर हैं? 150। उनमें से बुजुर्ग दाऊद ने कितने लिखे? 73। ओके, सो ख्याल करें कि अगर जैसे बहुत सारे लोग ये बयान करने की कोशिश करते हैं कि जी मूसा पर शरीयत उतरी, तो इसका मतलब वो कह रहे हैं कि 5 किताबें उतरी, जबकि ये बाइबल मुकद्दस के मुताबिक दुरुस्त बात नहीं है। ओके, नंबर 2, बुजुर्ग दाऊद पर ज़बूर की किताब उतरी, जबकि ऐसा भी नहीं है। ज़बूर की किताब भी सिर्फ उनके जो ज़बूर हैं उनकी तादाद 73 और बाकी जो दीगर लोग हैं, लिखारी हैं, मुसन्नफीन हैं, उनके ज़बूर मज़ामीर जो हैं उनको शामिल किया गया। सो इसका मतलब यह है कि यह मुसद्दका इंफॉर्मेशन या मालूमात नहीं है, ये सुनी सुनाई बातें हैं, जबकि बाइबल मुकद्दस से तस्दीक शुदा ये बातें नहीं है। ये वो लोग करेंगे जिन्होंने बाइबल मुकद्दस को नहीं पढ़ा और बाइबल मुकद्दस के बारे में सिर्फ सुना है या गलतफहमियों के बारे में सिर्फ उन्होंने सुन रखा है। लेकिन चूंकि हमारे पास बाइबल मुकद्दस है, खुदा का कलाम है, हम जानते हैं कि बुजुर्ग मूसा पर शरीयत की किताबें नहीं उतरी हैं, बुजुर्ग दाऊद पर ज़बूर 150 ज़बूर नहीं उतरे हैं। इसी तरह खुदावंद यीशु मसीह पर भी कोई इंजील नहीं उतरी है। आमीन। ये बात हमें याद रखनी चाहिए और अपने तमाम मसीहियों को सिखानी भी चाहिए, ताकि जो मासूम लोग हमारे मसीही जिनसे सवाल किया जाता है और कई दफ़ा वो खामोश रहते हैं, बहुत सारी रीजंस हैं मसीहियों के खामोश रहने। कई दफ़ा आप जानते हैं बोलकर तो ऐसे गलत फंसा दिया जाता है या उन पे ऐसे इल्जामात लगा दिए जाते हैं, इसलिए बहुत सारे लोग इसी वजह से खामोश रहते हैं। और बहुत सारे लोगों को वैसे पता नहीं होता, इसलिए भी वो खामोश रहते हैं। लेकिन अच्छा है कि हमें अपने कलाम के बारे में इदराक हो, इल्म हो, और जब हमें कोई हमारे ईमान की वजह पूछे तो हमारे पास जवाब देने के लिए कुछ हो। आमीन। सो इसलिए जरूर इस बात को जहन में रखें। फिर जो 4 के ताल्लुक से हम सीख रहे हैं, तो मुख्तलिफ स्कॉलर्स, मुसन्नफीन, मुख्तलिफ जो कमेंटेटर्स हैं, उन्होंने मुख्तलिफ इस ताल्लुक से बातें की हैं। जैसे 4 का अदद कहते हैं कि जमीन और तख्लीक को भी जाहिर करता है, या वहां पर भी इसकी जो इंपॉर्टेंस या सिग्निफिकेंस है वो दिखाई देती है। जैसे खुदा ने 4 ही मौसम बनाए हैं, सर्दी, गर्मी, बहार और खिज़ां। इसके अलावा कहते हैं कि 4 ही समतें हैं, मशरिक, मगरिब, शिमाल और जनूब। फिर 4 ही कदीम अनासर हैं, जमीन, हवा, पानी और आग। ओके, 4 नदियों के ताल्लुक से भी बयान किया जाता है। अगर आपके पास बाइबल मुकद्दस है तो मेरे साथ जरूर देखिए पैदाइश की किताब, इसका 2 बाब। पैदाइश की किताब
इसका दूसरा बाब और इसकी 10वीं आयत में लिखा है, और अदन से एक दरिया बाग के सैराब करने को निकला और वहां से 4 नदियों में तकसीम हुआ। कुछ लोगों का कहना है कि ये ऐसे ही है जैसे दरिया तो एक है लेकिन नदियां 4 हैं। तो 4 जो अनाजील हैं ये भी ऐसा ही है कि पीछे दरिया जो है या सोर्स जो है वो एक है लेकिन नदियां, बहाव जो हमें नजर आता है वो 4 की सूरत में नजर आता है। फिर कुछ स्कॉलर्स इस बात के लिए एग्रीड हैं कि ये जो पर्दा है, हैकल का पर्दा जो पाक मकान, पाक तरीन मकान को एक दूसरे से जुदा करता है, ये पर्दा दरअसल 4 सतूनों पर खड़ा था। कितने सतूनों पर? 4। आए जरा देख लें खुरूज की किताब, पुराने अहदनामे में से खुरूज की किताब, इसका 26वां बाब और इसकी 31वीं और 32वीं लिखा है 2 आयत में, और तू आसमानी, अर्गवानी और सुर्ख रंग के कपड़ों और बारीक बटे हुए कतान का एक पर्दा बनाना और उसमें किसी माहिर उस्ताद से करोबियों की सूरत कढ़वाना और उसे सोने से मंडे हुए कीकर के 4 सतूनों पर। कितने? 4 सतूनों पर। और कौन से? कीकर के। कौन से सतून होंगे? कीकर के होंगे, लेकिन उन पर क्या मंडा होगा? सोना मंडा होगा। 4 सतूनों पर लटकाना। ये जो 4 सतून हैं, कुछ स्कॉलर्स का मानना है कि ये 4 सतून भी 4 अनाजील की तरफ इशारा है जिन्होंने इस पर्दे को क्या किया हुआ है? उठाया हुआ है। और पर्दा इब्रानियों की कलीसिया के नाम लिखा गया खत, इसके 10वें बाब में जरा देखें। यह पर्दा खुदावंद यीशु मसीह को रिप्रेजेंट करता है। इब्रानियों की किताब, इसका 10वां बाब 19वीं और 20वीं 2 आयत में लिखा है, बस ए भाइयों, चूंकि हमें यीशु के खून के सबब से उस नई और जिंदा राह से पाक मकान में दाखिल होने की क्या है? दलेरी है, जो उसने पर्दे यानी अपने जिस्म में से। तो किसकी बात हो रही है? खुदावंद यीशु मसीह की। यहां खुदावंद यीशु मसीह को पर्दे के साथ तशबीह दी गई है। सो इस पर्दे को क्या किया हुआ है? 4 सतूनों ने उठाया हुआ है। सो ये जो 4 सतून हैं ये क्या हैं? 4 अनाजील हैं जिन्होंने खुदावंद यीशु मसीह की शख्सियत को रिप्रेजेंट करने, उसे पेश करने का काम या जिम्मेदारी संभाली हुई है और वो खुदावंद यीशु मसीह को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। आमीन। इसीलिए आप जानते हैं कि जब खुदावंद यीशु मसीह ने अपनी जान दी तो पर्दा भी बीच में से ऊपर से नीचे तक 2 टुकड़े हो गया। चूंकि इस पर्दे के ताल्लुक से जैसा बयान किया गया इब्रानियों का मुसन्निफ बयान करता है। फिर ये कीकर की जो लकड़ी है इसका तज़किरा है कि ये सतून किस चीज के हैं? कीकर की लकड़ी। तो कीकर या लकड़ी जो है ये खास तौर पे इंसान की तरफ इशारा है कि 4 इंसान हैं, यानी 4 शख्सियात हैं और इन पे सोना मंडा हुआ है। सोना जो है ये खुदा बाप की या कह लें खुदाए सालूस की उलूहियत को जाहिर करता है और जो लकड़ी है ये इंसान को जाहिर करती है। सो लकड़ी पर क्या मंडा हुआ है? सोना मंडा हुआ है। इसका मतलब है कि ये जो 4 शख्सियात हैं या जो 4 मुसन्नफीन हैं न्यू टेस्टामेंट में अनाजील के, इन 4 पर सोना मंडा हुआ है, यानी खुदा ने इनको अपनी लपेट में ले रखा है और इन्हें अपने कंट्रोल में ले रखा है। इसी वजह से इन्होंने खुदावंद यीशु मसीह की शख्सियत को पेश किया है। आमीन। सो 4 जो अनाजील हैं ये चूंकि खुदावंद यीशु मसीह की जमीनी खिदमत, उसकी उलूहियत और उसकी जो जमीनी
तमाम जिंदगी या खिदमत के वाकयात हैं उनको बयान करती हैं। इन मुसन्निफीन ने हमें इतना इदराक दे दिया है कि जो मसीह हमें समझाना चाहते थे वो इन अनाजील के वसीले हम मसीह के बारे में समझ सकते हैं। आमीन। अगर कोई मसीह को समझना चाहता है तो उसके लिए जरूरी है कि वो इन 4 अनाजील का जरूर मुताला करे। मैं एक स्कॉलर को सुन रहा था, वो कह रहे हैं कि अगर एक ईमानदार बाइबल मुकद्दस नहीं पढ़ता तो इसका मतलब यह है कि वो कभी भी खुदा को वो इज्जत, वो ऑनर दे ही नहीं सकता जो बाइबल मुकद्दस में खुदा को दी गई है। सो इसका मतलब यह है कि जितने लोग बाइबल मुकद्दस को नहीं पढ़ते डेली बेसिस पर, रोजाना की बुनियाद पर, वो कभी भी खुदावंद यीशु मसीह को अंडरस्टैंड नहीं कर सकते हैं। वो कभी भी पाक रूह को अंडरस्टैंड नहीं कर सकते। वो कभी भी खुदावंद जिंदा खुदा को अंडरस्टैंड नहीं कर सकते हैं। खुदाए सालूस के रेवलेशंस को समझ नहीं सकते हैं। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि अगर कोई खुदावंद यीशु मसीह को अंडरस्टैंड करना चाहता है तो ये जो 4 सतून हैं या जो 4 अनाजील हैं, इन्होंने वैसे ही हमें समझाया जैसे मसीह हमें समझाना चाहते थे। आमीन, प्रेज गॉड। इसी तरह मैं आपको इनकरेज करूंगा कि आपने जो मुकद्दस मत्ती रसूल की मारिफत लिखी गई इंजील है, इसका मुताला इस वीक में लाजमी करना है। ओके, क्या करना है? ये आपकी असाइनमेंट है, होमवर्क है कि आप सब ने मुकद्दस मत्ती रसूल की मारिफत लिखी गई इंजील का जरूर मुताला करना है, पढ़ना है। पहले बाब से आखिरी बाब तक आपने लाजमी पढ़ना है। और वीक में ये पढ़ना कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। ओके, कर सकते हैं कि मुश्किल है? ओके, सो याद रखें कि किसी भी एक शख्सियत पर 2 मुख्तलिफ लोगों को कहा जाए कि आप लिखें। जैसे मिसाल के तौर पे आज पहला लेक्चर हुआ है, आप में से 2 स्टूडेंट्स को कहा जाए ना कि जो आज सिखाया गया है पहले लेक्चर में उसकी समरी लिखें, तो आपको पता है कि दोनों की मुख्तलिफ होगी। ऐसा ही है, बिल्कुल अल्फाज मुख्तलिफ, अंदाज मुख्तलिफ। हालांकि बातें वही होंगी लेकिन अंदाज, ख्याल, सोच सब कुछ बहुत मुनफरद होगा। सो इसलिए ये जो 4 मुसन्निफीन हैं, इन्होंने खुदावंद यीशु मसीह की शख्सियत का जो मुताला है वो मुख्तलिफ अंदाज से किया है। हमें कभी भी ओवर रीड करने की जरूरत नहीं है किसी भी चीज को, कि जो लिखा है हम उस पे एतराज करें, जी मुकद्दस मत्ती ने तो ये लिखा है, मुकद्दस लूका ये क्यों लिख रहे हैं, मुकद्दस मरकुस ने तो ये लिखा है, मुकद्दस यूहन्ना क्यों लिख रहे हैं। इस बात को अंडरस्टैंड करें कि रूहुल कुद्स ने 4 मुसन्निफीन को उनकी काबिलियतों या सलाहियतों की बुनियाद पे इस्तेमाल किया है और हर एक ने अपने अंदाज से उस बात को लिखा है, बयान किया है। अब क्या वजह है, या ये डिफरेंसेस क्यों हैं, या बहुत सारी चीजों में आपको मालूमात ऐसी क्यों नजर आती हैं, इसके लिए याद रखें कि रूहुल कुद्स ने मुख्तलिफ लोगों के लिए इन मुसन्निफीन को इस्तेमाल किया है ताकि उन तक रसाई हो सके। अगर मुकद्दस मत्ती ही की मारिफत लिखी गई इंजील होती, रूमी महरूम हो जाते, यूनानी महरूम हो जाते और पूरी दुनिया के लोग महरूम हो जाते इंजील से, क्योंकि जो मुकद्दस मत्ती रसूल की मारिफत लिखी गई इंजील है ये खालिस्तन और खुसूसन स्पेसिफिकली या खुसूसी तौर पे किनको लिखी गई है? यहूदियों को लिखी गई है। तो इसका मतलब यह है कि बाकी जो लोग हैं उनके लिए तो ये अमूमी तौर पे लिखी गई है, तो बाकी सारे लोग महरूम हो जाते मसीह की मुनादी, मसीह के कलाम से। सो इसलिए उन तमाम लोगों तक एक्सेस
रसाई के लिए रूहुल कुद्स ने इन 4 शख्सियात का चुनाव किया, इन्हें चुना और इन्होंने अपने तौर से या अपनी जो इंसानी काबिलियतें सिर्फ उनके मुताबिक नहीं बल्कि रूहुल कुद्स ने इनको कंट्रोल किया, जिसकी बिना पर इन्होंने खुदावंद यीशु मसीह की शख्सियत को मुख्तलिफ अंदाज से बयान किया। ये जो 4 मुख्तलिफ मुसन्निफीन हैं, जैसे मुक़द्दस मत्ती रसूल हैं, अब ये खुद यहूदी थे। क्या थे? ये यहूदी थे और रूमी हुकूमत में एक बहुत अच्छे ओहदे पर फाइज थे, मसूल लेते थे, लेकिन मसूल लेने वालों में भी कैटेगरीज थी। ये अच्छे ओहदे पर फाइज थे। अब इनकी शख्सियत देखें और मुक़द्दस मरकुस को देखें, वो एक खादिम है, वो एक खादिम है। जैसे सर्वेंट लफ्ज भी इस्तेमाल किया गया है या डिसाइपल भी इनके लिए इस्तेमाल किया गया कि ये मुक़द्दस पौलुस के क्या थे और बरनबास के शागिर्द थे। ये क्या थे? शागिर्द थे। मुक़द्दस लूका की शख्सियत को आप देख लें। मुक़द्दस लूका गैर कौम से इनका ताल्लुक है, यहूदी नहीं है और अपनी जात में चूंकि बड़े ही जबरदस्त और उस वक्त की जो ग्रीक के एतबार से बड़े पढ़े लिखे शख्स और पेशे के एतबार से डॉक्टर हैं और मुक़द्दस पौलुस रसूल के बड़े करीबी दोस्त रहे हैं। मुक़द्दस यूहन्ना रसूल की मारिफत देख लें, वो एक मछेरे हैं और मछलियां पकड़ना उनका पेशा है, काम है। और इसके अलावा खुदावंद यीशु मसीह के साथ इंतहाई जो करीबी सर्कल है, जिसे हम इनर सर्कल कहते हैं, उस सर्कल के वो मेंबर थे या उसका वो हिस्सा थे। अब ये जो 4 मुख्तलिफ मुसन्निफीन हैं, इसी तरह से जो इनके सामईन हैं, ऑडियंस हैं या मुखातबीन हैं, जिनको इन्होंने मुखातिब किया है अपनी अपनी इंजील में, जैसे मुक़द्दस मत्ती रसूल हैं तो इन्होंने खुसूसी तौर पे इंजील यहूदियों को लिखी है और अमूमी तौर पे ये इंजील जो है ये सारी दुनिया के लिए है। इसमें दूसरी जो तीनों अनाजील हैं उसकी निस्बत बहुत बड़ा डिफरेंस आपको नजर आएगा। इनके सामने एक टारगेट है, इनके सामने एक निशाना है जिस पर ये पहुंचना चाहते हैं और अपने ऑडियंस को, सामईन को, मुखातबीन को ले जाना चाहते हैं। वो नुक्ता क्या है, वो टारगेट क्या है कि ये खुदावंद यीशु मसीह को यहूदियों का बादशाह दिखाना चाहते हैं, ताकि यहूदियों को ये साबित हो जाए कि यीशु मसीह यहूदियों का क्या है, बादशाह है। सो आप इनकी इंजील पढ़ें तो आपको दोनों जो बाकी 3 जो अनाजील है उनसे मुख्तलिफ नजर आएगा कि भाई वो जो 3 अनाजील हैं उनमें इस तरह की स्पिरिट मौजूद नहीं है। और इसी तरह से इस इंजील में पुराने अहद के सबसे ज्यादा हवाला जात को शामिल किया गया है। वजह क्या है? क्योंकि यहूदियों को लिखी जा रही है और यहूदियों के पास रिटन मुआद क्या है, स्क्रिप्चर क्या है या मुकद्दस किताब क्या है, पुराना अहदनामा। सो इन्होंने पुराने अहद के हवाला जात को कोट कर करके बताया है। आपको इस कदर स्क्रिप्चर के हवाला जात किसी और इंजील में नहीं मिलेंगे जैसे मुकद्दस मत्ती ने इन चीजों को बयान किया है। सो इसलिए बड़ा वाज़े फर्क नजर आएगा और अलग चीजें नजर आएंगी। इसलिए याद रखें, जब आपको पता होगा कि ये शख्स कौन है, लिखने वाला कौन है, इसका मजहब क्या है और इसके मुखातबीन कौन है, तो आपके लिए चीजों को अंडरस्टैंड करना, समझना या दूसरों को समझाना मुश्किल नहीं होगा। ओके। नंबर 2, मुकद्दस मरकुस, जिनके बारे में अभी हमने सीखा है और देख भी रहे हैं। मुकद्दस मरकुस ने, याद रखें, ये इंजील रूमियों के लिए लिखी है। किन के लिए लिखी है? रूमियों के लिए। क्योंकि रूमी लोग, कोई भी शख्स है ना, कोई भी शख्स तो उसकी स्टेटमेंट्स पे नहीं जाते कि ये भाई तालीम क्या देता है, इसका फलसफा क्या है, इसकी टीचिंग्स क्या हैं, ये
جو اقوال زری ہیں وہ کیا ہیں اس کے. لوگ کہیں گے یہ بڑا فلاسفر ہے, یہ بڑی گہری باتیں. وہ نہیں مانتے. وہ کہتے ہیں کہ اس کے ایکٹس کیا ہیں, اس کے اعمال کیا ہیں, یہ کرتا کیا ہے. اس لیے مقدس مرکس نے کیا کیا ہے, انہوں نے یہ انجیل جو ہے وہ چونکہ رومیوں کو لکھی ہے, اس لیے وہ خداوند یسوع مسیح کی خدمت پر توجہ دیے ہوئے ہیں, خداوند یسوع مسیح کے کاموں پر توجہ دیے ہوئے ہیں کہ انہوں نے کیا کیا ہے اور کس طرح سے انہوں نے خدمت کا کام سر انجام دیا ہے. اوکے, سو ہمیں نظر آ رہا ہے پرسپیکٹو دونوں کا ڈفرنٹ, مقدس متی کا ڈفرنٹ اور مقدس مرکس کا ڈفرنٹ ہے. ایک الگ ٹارگٹ کے ساتھ چل رہا ہے اور دوسرے کا ٹارگٹ الگ ہے. ایک کی اپروچ ڈفرنٹ ہے اور دوسرے کی ڈفرنٹ ہے. ایک سمجھیں کہ مشرق کے لوگوں کو اپروچ کر رہا ہے تو دوسرا مغرب کے لوگوں کو اپروچ کر رہا ہے. بھئی یہ نہ رہ جائیں, اگر ان کو کلام سنا دیا گیا ہے تو یہ لوگ محروم نہ رہ جائیں. اس لیے مقدس مرکس نے ان لوگوں کو ٹارگٹ کیا ہے اور ان کے لیے اس انجیل کو لکھا ہے. نمبر 3, جیسے ابھی مقدس لوکا کے بارے میں ہم نے مقدس لوکا کے بارے میں ابھی ہم نے دیکھا ہے کہ ان کا تعلق غیر قوم سے ہے, اور یہ انجیل خاص طور پہ انہوں نے کس کے لیے لکھی ہے, یونانیوں کے لیے. کن کے لیے؟ یونانیوں کے لیے. جب آپ اس انجیل, چونکہ جو یونانی لوگ ہیں ان کا زور جو ہے وہ ثقافت پر, تعلیم پر زیادہ ہے, دلچسپی زیادہ لیتے ہیں تعلیم میں, ثقافت میں اور ٹریڈیشنز میں. اس لیے آپ کو مقدس لوکا کی معرفت لکھے گئے انجیلی بیان میں جو گریک لینگویج نظر آتی ہے وہ بڑی رچ نظر آتی ہے. اعمال کی کتاب بھی چونکہ انہوں نے ہی قلم بند کی ہے, لکھی ہے, بڑی رچ, بڑی زبردست اور بڑی خوبصورت کہ جو یونانی لوگ ہیں انہیں اس انجیل کو اور اعمال کی کتاب کو پڑھ کے اپنائیت نظر آتی ہے کہ یہ کوئی ہمارا اپنا ہے جس نے یہ لکھا ہے. سو اگر کسی کو آپ کی اپنائیت کا احساس ہو جائے تو وہ آپ کے پیغام کو بھی ایکسپٹ کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے اور آپ کی تعلیمات کو قبول کرنے کے لیے بھی تیار ہو جاتا ہے. سو اس لیے مقدس لوکا کے جو مخاطبین ہیں, مقدس لوکا کے جو سامعین ہیں, جو آڈینس ہے, وہ کون ہیں؟ یونانی لوگ ہیں. اور اگر ان کی آپ یونانی زبان دیکھیں تو اس وقت کی چونکہ جو ہمارے پاس جس کو ہم کوئنے گریک کہتے ہیں, بائبل مقدس کی جو لینگویج ہے, جو عام کامن لینگویج تھی, اور اس کے علاوہ ایک کلاسیکل گریک, تو مقدس لوکا کے جو ورڈ بینک ہے, جو ان کی ووکیبلری ہے, جو ان کا ذخیرہ الفاظ ہے, وہ ایسا رچ ہے اور ایسا زبردست کہ اس وقت کی جو کلاسیکل گریک تھی, جیسے آج اردو ادب, عام اردو جو ہم سب بولتے ہیں, اس سے کچھ رچ ہوگی تو اسے ہم اردو ادب کہتے ہیں. جیسے شاعری میں لوگ مختلف بڑے اور بھاری الفاظ استعمال کرتے ہیں جو عام بندے کی سمجھ سے بالاتر ہوتے ہیں, اور کئی لوگوں کو شعر سن کے اس کی تشریح سننا ضروری ہوتا ہے تاکہ انہیں شعر کی سمجھ آ سکے. سو مقدس لوکا کی جو لینگویج ہے, مقدس لوکا کے جو لکھنے کا انداز ہے, وہ بالکل یونانیوں جیسا ہے. اور اسی طرح سے آپ جب ان کی انجیل یا رسولوں کے اعمال کو پڑھتے ہیں تو ایسا زبردست چیزوں کا رچاؤ اور چیزوں کی جو فکرہ بندی ہے اور چیزوں کی جو ان کی وضاحت, ان کی انٹینسٹی کو شو کرنے کے لیے جن الفاظ کا چناؤ کیا گیا ہے بیان سے باہر ہے. ایسے الفاظ کا چناؤ کہ درست ایسے جیسے کسی انسان کے اندر سے اس کی بات نکال کر باہر رکھ دی جائے کہ اندر کیا چھپا ہوا ہے.
मुकद्दस लूका का ये स्टाइल है, अंदाज है, क्वालिटी है, उनके पास खासियत है कि वो ऐसे लिखारी हैं। ओके, नंबर 4 जो अभी हम मुकद्दस यूहन्ना रसूल के बारे में सीख रहे थे कि मुकद्दस यूहन्ना रसूल की जो इंजील है, इस इंजील में टारगेट किया गया है पूरी दुनिया को। कोई एक तबका नहीं, कोई एक गिरोह नहीं, कोई एक कौम नहीं है, बल्कि इनका पैगाम यूनिवर्सल पैगाम है। इनका पैगाम जो है वो आलमगीर पैगाम है। जैसे बड़ी मारूफ आयत मुकद्दस यूहन्ना रसूल की मारिफत लिखा गया इंजीली बयान 3 बाब की 16वीं आयत क्या है? क्योंकि खुदा ने क्या किया कि उसने ताकि जो कोई हलाक ना हो बल्कि। ओके, सो इनका टारगेट और इनके ऑडियंस तमाम दुनिया के लोग हैं। और इसी तरह से जैसे हमने देखा है मुकद्दस मत्ती की ऑडियंस क्या है? वेरी गुड। और मुकद्दस मरकुस की है रूमी लोग। रूमी क्यों हम कहते हैं कि रूमी टारगेट हैं? क्योंकि रूमी जो है वो फिलॉसफी पर नहीं बल्कि एक्ट्स, खिदमत, काम, इन पे तवज्जो देते हैं। ओके, और मुकद्दस लूका किनको लिखते हैं, मुखातिब करते हैं? और सब याद रखें कि ये जो हम बातें कर रहे हैं ये दोनों एतबार से आपने इनको याद रखना है कि भाई खुसूसी तौर पे इनको, लेकिन अमूमी तौर पे ये मेरे लिए भी है और सारी दुनिया के लिए है। ओके, तो ये ना हो कि कहीं अड़ जाएं। नहीं नहीं नहीं, हमने तो यही सीखा था। कोई कहे ना भाई ये, जैसे आगे चल के और भी चीजें सीखेंगे, स्पेसिफिकली भी देखेंगे भाई, जैसे मुकद्दस यूहन्ना रसूल की मारिफत लिखी गई। आपको पता है कि इन्होंने तो बिदात को मद्देनजर रख के लिखा था और इन्होंने अपनी इंजील में यीशु मसीह को खुदा के तौर पे। सो और भी बहुत सारी बातें हैं इन अनाजील में। चूंकि ये सर्वे हो रहा है और अगर कोई मुकद्दस यूहन्ना रसूल की मारिफत लिखी गई या दीगर अनाजील के ताल्लुक से कोई और रिसर्च आपके साथ शेयर करे तो गुंजाइश रखें मानने के लिए, ठीक है? बास मुबासे से काम नहीं चलाएं बल्कि गुंजाइश रखें। हाँ, सुन के आप बाद में रिसर्च कर लें, देख लें कि भाई जो बात ये कह रहे हैं आया दुरुस्त भी है या नहीं, लेकिन बास मुबासे से जरूर गुरेज करें। ओके, कोई सवाल हो यहां तक? को नहीं देखा, जो मैंने पढ़ा था। कहने की रवायत ये है कि इन्होंने कभी भी खुदा यीशु मसीह को नहीं देखा था। ओके, बल्कि ये बजाते खुद गलील के शहर नासरत में गए और वहां पे खुदा मुकद्दसा मरियम से इन्होंने मुलाकात की और फिर उनसे खुदा यीशु मसीह की पैदाइश के बारे में सारी मालूमात जो है वो इकट्ठी की और फिर उन्हें ज़ब्ते तहरीर में लाए। और बाकी मवाद जो है इन्होंने वो चश्मदीद जो गवाह थे खुदा यीशु मसीह के वक़्त के, उनसे मवाद जो है वो इकट्ठा किया था। ओके, ये एक रिसर्च है जो कि रोमन कैथोलिक्स की है। वो बयान करते हैं कि इनको सिखाया है मुकद्दसा मरियम ने। बहरहाल इस पे भी आगे चल के गौर करेंगे, सीखेंगे। ये बात दुरुस्त है, वो खुदावंद यीशु मसीह से मिले नहीं थे और उनकी इस तरह से वाकफियत भी उस जैसे दूसरे शागिर्दों की थी वैसे नहीं थी। लेकिन एक बात दुरुस्त है कि खुदा का पाक रूह, अब आप जब हम पैदाइश की किताब पढ़ते हैं जिसके बारे में कहा जाता है, ये बात भी कंफर्म नहीं है कि इसका मुसन्निफ कौन है। पैदाइश की किताब का मर्द खुदा बुजुर्ग मूसा। जब खुदा आदम और हवा को बना रहा था तब क्या मर्द खुदा बुजुर्ग मूसा वहां थे? वहां थे नहीं। तो फिर किसने रहनुमाई की होगी कि पैदाइश में क्या हुआ था, आगाज में क्या हुआ था? हाँ, तो फिर अगर हम पैदाइश की किताब के बारे में ये समझ सकते हैं तो हमें बआसानी समझ आना चाहिए कि भाई मुकद्दस लूका को भी रूहुल कुद्स ने ही सिखाया है। ओके, सो मुकद्दस लूका को रूहुल कुद्स ने
हाँ, मुकद्दस पौलुस के बारे में कहा जाता है और मुकद्दस पतरस के बारे में कहा जाता है कि इन्होंने उनकी रहनुमाई की होगी। और अजीबों में एक और बात थी वहाँ पर लिखी कि खुदा ने इन मुकद्दस मूसा को यानी इस तरीके से इस्तेमाल किया कि वहाँ लिखा हुआ है कि अगर कोई मख्तून यहूदी जो है वो भी इस तरीके से अंजील को नहीं लिख सकता था जिस तरीके से उन्होंने लुका रसूल ने लिखा, लुका तबीब ने लिखा है। कह सकते हैं दुरुस्त, क्योंकि मख्तून ने एक इंजील लिखी है, दूसरी नामख्तून से लिखवा दी गई है। ओके, और कोई कुछ ऐड करना चाहें या कुछ सवाल? वेरी गुड, आप पढ़ा करें। जैसे हम सर्वे के ताल्लुक से देख रहे हैं तो इन अनाजील के बारे में आप पढ़ें। अभी हम आगे बढ़ेंगे तो आप साथ साथ रिसर्च किया करें कि जो कुछ हम कह रहे हैं, क्योंकि ये हतमी नहीं चीजें होती। हर स्कॉलर कोई ना कोई डिफरेंट राय रखता है हर पॉइंट के बारे में। आप पढ़ें, जितना भी पढ़ेंगे आपका फायदा होगा और आपको ज्यादा चीजें समझ आएंगी। इसमें ये भी पढ़ा था कि ये किसी वक्त में यानी मुकद्दस पौलुस रसूल है, उनके साथ भी उनके हम सफर रहे। हाँ, बल्कि उनके साथ भी रहे कि बल्कि वो कहते हैं कि वो उनके जाती मुआलिज भी रहे हैं और अक्सर का तो उन्होंने उनकी बीमारी की हालत में निगहदाश्त जो है वो भी करते रहे हैं। जी जी, पॉसिबिलिटी है, मैंने इन नोट्स में भी लिखा हुआ है। हाँ जी, एक और बात थी कि लिखा है कि इनकी इज़्वाजी हैसियत जो थी वो भी खैर शादीशुदा रहे, यानी कि उन्होंने शादी नहीं की अपने वक्त में। खैर ये तो नोट्स में चीज़ शामिल नहीं है, लेकिन जो मेरे इस सब्जेक्ट से रिलेटेड चीज़ें हैं मुकद्दस लूका के हवाले से, ये मुकद्दस पौलुस का साथ, उनके साथ जो सफ़र हैं उनमें आना जाना, ये ज़रूर मैंने ऐड किया हुआ है। जी, जब नोट्स आप तक पहुंचेंगे तो आपको ज़रूर हेल्प होगी, मदद मिलेगी। ओके, सो मैं उम्मीद करता हूँ यकीनन आज की भी क्लासेस आपके लिए बाबरकत रही हैं। आइंदा भी आप ज़रूर ट्यूसडे वेडनेसडे को क्लासेस में शामिल हुआ करें। आपको कल भी हमने बताया था और इस बात को आप सब भी ज़हन नशी कर लें कि हमने गुज़श्ता जो 5 मंथ्स के वो स्टूडेंट्स जो गैर हाज़िर रहे हैं, ज़्यादातर जिनके अटेंडेंस दुरुस्त नहीं थी, फ़ी नहीं दे रहे थे और जिनके एग्ज़ाम्स हमारे पास नहीं पहुंचे थे, तकरीबन 80 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको हमने क्लास में से रिमूव कर दिया है। और बाकी जो स्टूडेंट्स हैं इनके लिए भी बड़ा सख्ती से काम जारी है। इनकी अटेंडेंस और इनके जो अभी एग्ज़ाम्स होंगे और इसी तरह से जो इनकी फ़ी है, इस ताल्लुक से सारी चीज़ें जो हैं वो देखी जा रही हैं। सो आप अपना जो रिकॉर्ड है इसको दुरुस्त रखें ताकि आपके लिए आइंदा कोई मुश्किल परेशानी ना हो। ओके।